چار مینار کی تعمیر ہندوستان میں قطب مینار بننے کے 400 سال بعد عمل میں آئی۔ عام طور پہ قطب مینار جو ہے 1200 عیسوی میں اس کی پلاننگ وغیرہ ہو کر کام شروع ہوا تھا، اور اسی طرح چار مینار جو ہے 1591 یعنی تقریباً 400 سال کے بعد یہ عمل میں ہے۔ تو ایک دہلی میں قطب مینار بنا اور حیدرآباد میں جو ہے یہ چار مینار 400 سال کے بعد چار مینار بنے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک اور مینار ہندوستان میں تعمیر ہوا، وہ قلعہ دولت آباد میں چاند مینار کے نام سے موسوم ہے۔ تو ہم آج جو ہے چار مینار کے بارے میں آپ کو کچھ اس کی باتیں ہم پیش کریں گے۔ چار مینار کی جو پلاننگ ہے، ایک مینار دو مینار کے بجائے حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر چار مینار کی ایک بڑی عمدہ عمارت جو ہے تعمیر ہوئی ہے۔ تو چار مینار کی تعمیر کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بغداد عراق میں ایک مونومنٹ ہے کاظمین، جہاں پر پہلی مرتبہ 14ویں صدی عیسوی میں چار مینار جو ہے تعمیر ہوئے۔ وہ پہلی عمارت تھی جہاں پر چار مینار بغداد میں ہیں۔ اس کے بعد ترکی میں ایک مشہور آرکیٹیکٹ ہے کوکا سنان، انہوں نے ایڈرنے میں ایک مسجد ڈیزائن کی چار مینار بننے سے پہلے 1580 میں ایک مسجد ڈیزائن کی، جس کے جو ہے چار مینار رکھے ہیں وہ۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ان چار میناروں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے وہ ٹرکش آرکیٹیکٹ نے۔ تو اسی طرح ہمارے چار مینار میں بھی جو ہے ایک ایک مینار چار حصوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے، لیکن ایرانی مینار اور عربی میناروں میں یہ تقسیم نہیں تھی۔ تو ہمارا یہ جو چار مینار حیدرآباد کا ہے وہ زیادہ ترکوں کے بنائے ہوئے استنبول میں مساجد کے اطراف اور ایڈرنے کی مسجد کے اطراف جو مینار ہیں اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر گولکنڈے کی میں جب کیپٹل تھا قطب شاہوں کا 1512 سے 1590 تک 91 تک، جب محمد قلی قطب شاہ تخت پر بیٹھے ہیں، تو ان کے زمانے میں چونکہ گولکنڈے میں کی آبادی وسیع ہو گئی تھی اور وہ پرسکون ماحول نہیں تھا، اس لیے یہ جو ہے کیپٹل یہاں پر دور موسیٰ ندی کے کنارے، اب جو جہاں پر حیدرآباد آباد ہے اس کو سلیکٹ کیا گیا اور پرفضا مقام کو، اور وہاں پر ایک شہری نقشہ تشکیل دیا گیا جس میں سیدھی سڑکیں اور عمدہ قسم کے باغ، بازارات اور یہ تعمیرات، شاہی محلات، یہ تمام جو ہے پلان کر کے شہر کو جو ہے نقشہ ترتیب دیا گیا اور تعمیر کیا گیا۔ لیکن سب سے پہلے چونکہ 1000 ہجری تکمیل ہو رہی تھی، تو 1000 ہجری کی تکمیل کے وقت جو ہے چار مینار 2 سال کے اندر جو ہے یہ تعمیر کر دیا گیا، اور اس کے بعد 6-8 سال تک مختلف عمارتیں حیدرآباد کی تعمیر ہوئی موسیٰ ندی کے کنارے۔ تو یہ جو چار مینار کی جو اہمیت ہے کہ اگر آپ حیدرآباد دیکھنا ہے تو چار مینار کو دیکھیے، یہ چار مینار دیکھنا ہے تو آپ کو حیدرآباد نظر آ جائے گا۔ تو یہ اس طرح ایک ضرب المثل ہے جو حیدرآباد میں چلتی ہے اور آج تک اس پر قائم ہے۔ اور اتنی خوبصورت عمارت ہے، اتنی لاجواب عمارت ہے چار مینار، کہ اس جیسی اہم عمارت جو ہے ابھی تک اور دوسری کوئی شہر میں اتنی اٹریکٹیو جو ہے نہیں ہے جو چار مینار میں ہے۔ لوگ جوق چلے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور بڑے کم سے کم ایریے میں جو ہے ایسی شاندار عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ محمد قلی قطب شاہ اور حضرت میر مومن، ان کے جو استرابادی، ان کے جو وزیر اعظم تھے، ان لوگوں کا ان کی پلاننگ ہے، اور یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ چار مینار آج بھی آباد ہے۔ اور اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، اندر جو ہے پتھر کی تعمیر ہے، گرینائٹ اسٹون، جو تلنگانے میں دکن میں خاص طور پر یہاں پر حیدرآباد کے اطراف جو پہاڑیاں ہیں، اور جیسے گگن پہاڑ مشہور ہے، تو وہاں سر یہ پتھر لایا گیا اور عمدہ چونے میں جو ہے اس کو تعمیر کر دیا گیا۔ بعد میں استر کاری جو ہے یہ چونے کی گئی۔ یہاں پر چونکہ ماربل یعنی سنگ مرمر آپ کو نہیں ملتا برابر، تو اس لیے جو ہے تعمیرات میں گرینائٹ اسٹون کے تعمیر ہونے سے قبل
चूने का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद की मकबरे, कुतुब शाही गुंबदें, गोलकुंडा, इस तरह चार मीनार भी जो है एक ऐसी अहम इमारत है जो चूने में बनाई गई है। इस पर जो है प्लास्टर चढ़ाने के बाद जो है कट प्लास्टर वर्क है और उम्दा डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो ये जो चार मीनार तामीर हुआ उसकी बुलंदी 180 फीट है और इसमें चार का अंसर बहुत ज़्यादा रखा गया है चार मीनार की प्लानिंग में। जैसे चार तरफ चार मीनार हैं और दोनों मीनारों के बीच में एक एक कमान है, तो इस तरह जो है चार कमानें भी हैं और हर कमान के बाजू में चार चार कमानें बनाई गई हैं उसको डेकोरेट करने के लिए। और इस तरह अंदरूनी हिस्से में भी चार चार कमानें बनाई गई हैं हर तरफ जो है अंदरूनी हिस्से में। और फिर उसके बाद ये जो चार हिस्से ऐसे तकसीम किए गए हैं और इसमें जो आदाद हैं 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, तो 12 से 8 होता है, फिर सर्कुलर है। तो इस तरह जो है कुतुब शाही तामीर का ये बड़ा उम्दा नमूना है। तो चार मीनार तामीर होने के बाद मक्का मस्जिद वो अलहदा बाब है, वो बाद में तामीर हुई है, हैदराबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है। लेकिन चार मीनार का जो प्लानिंग है, इसके सामने चार कमानें बड़ी उम्दा बनाई गई हैं। सबसे पहले जो है चार मीनार के करीब 4 कमान है, उसके बाद गुलदार हाउस है, फिर मछली कमान है। तो ये 4 कमान और मछली कमान जो 2 कमानें हैं, इकसानियत है इसमें, ये चार मीनार के लिए तामीर की गई हैं। जबकि काली कमान और शहर बातिल की जो कमान है वो शाही महलात के लिए जो है के अप्रोचेस के लिए बनाई गई हैं। ये कमानें बुलंद इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो शाही निशान होता, शान और शौकत से जब हाथियाँ उसमें गुजरते हैं तो वो निशान को जो है नीचे झुकाया नहीं जाता, तो उसकी बुलंदी जो है कायम रहना और शान से जो है ये इंटर होते हैं। तो इसलिए ये बुलंद कमानें बनाने का वजह जो है ये है कि बादशाही के जो जुलूस आता और अपने पैलेसेस में एंटर होते या जो है बाहर निकलते, तो उस वक्त रख रखाव, बर्ताव वगैरह बड़ा एक देखने का मंजर होते। तो इसलिए जो है चारों कमानें, लेकिन ये जो चारों कमानें हैदराबाद में जो बनी हैं, ये हिंदुस्तान में ये पहली नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अगर हम देखें सांची में एक स्तूपा है, बुद्धिस्ट स्तूपा। तो सांची के स्तूपा के चारों तरफ 4 जो है एंट्रेंस आर्चेस हैं, वो पिलर एंड लिंटल स्टाइल में है। तो वो सांची मध्य प्रदेश में वहाँ पर पहली मर्तबा ये 4 कमानें बनी हैं। उसी तरह वरंगल के किले में 4 कमानें जो है पिलर एंड स्टाइल में पत्थर की बनी हुई हैं और बीच में कोई अहम इमारत थी जो इमारत नहीं रही। तो ये उसके बाद हैदराबाद का नंबर आता है। तो हैदराबाद में जो 4 कमानें हैं, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि जो कमानें सांची स्तूपा और वरंगल में हैं वो दाखिले के लिए हैं 4 तरफ से, ताकि एक मरकज़ी इमारत में पहुँचे, जैसा स्तूपा है और यहाँ पर जो वरंगल में दूसरी इमारत है। लेकिन यहाँ पर चार मीनार से हटकर जो है 4 कमानें बनाई गई हैं। अगर आप 4 तरफ से 4 कमानों में दाखिल हों तो आपको गुलजार हाउस एक अहम फवारा आपको मिलेगा, लेकिन कोई ऐसी इमारत नहीं मिलेगी जैसे वरंगल और सांची में मिलेगी। तो इसलिए कंसेप्शन ज़रूर है कि 4 तरफ 4 कमानें हैं और ये जो है कमानें मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है, वो पिलर एंड लिंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है। तो यहाँ पर गो के आइडिया सिमिलर है लेकिन पर्पस मुख्तलिफ है। अगर 4 मीनार बीच में होता और 4 तरफ कमाने होती तो वो एग्जैक्ट वो काफ़ी होती। यहाँ नहीं है, 4 मीनार के पास तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके सामने ये जुनूबी सिमत 2 कमानें, मछली कमान और 4 कमान है। और मछली कमान से 4 कमान का फासला 700 फीट है और 4 कमान से 4 मीनार जो है 275 फीट है। तो इस तरह तकरीबन 1000 फीट का फासला है मछली कमान और ये जो खूबसूरती उन्होंने जो कायम की थी आर्किटेक्ट्स ने, वो आज भी जो है 21वीं सदी में भी जो है वो बरकरार है वो खूबसूरती। लेकिन 4 कमानों के बीच का जो हिस्सा है जुलू खाना उसको कहते थे, वहाँ पर शाही पहरा होता था, फौज का इंतज़ामी शोबा और फिर बादशाह की सिक्योरिटी वगैरह का एरिया है
और बाग बगीचे वगैरह थी ये, लेकिन आज जो है दुकानात आने से उसकी शक्ल बदल चुकी है। तो इस तरह जो है चार मीनार की तामीर होने के बाद होते वक्त ये कमानें तामीर हुई, और साथ साथ जो है ये आपको कमानों की तामीर और चार मीनार की तामीर, फिर उसके बाद में शाही अंदाज की जो सड़कें हैं, शाहराहें हैं, जैसे पत्थरगट्टी की शाहराह है, फिर शाली मंडे की तरफ है, और चार मीनार से सीधी सड़क जो है गोलकुंडा जाती है, बरा है पुराने पुल, और एक तरफ जो है कोटले आलीजा की सिमत जो है मशरक़ी सिमत है, और दूसरी तरफ फलकनुमा जो आज पैलेस है, वो कभी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में, कुतुब शाही दौर में वहाँ पर कोहेतूर था। तो वो एक सड़क जो है जुनूबी सिमत वो कोहेतूर की तरफ जाती है, और जबकि शुमाली सिमत नदी पार करने के बाद ये नौर पहाड़ की तरफ जो है जाती है। तो इस तरह जो है शहर का ओरिएंटेशन ये था, और नदी का शानदार नज़ारा ये हैदराबाद के लिए बड़ा नायाब रहा है। मूसा नदी के किनारे हैदराबाद आबाद हुआ और फलता फूलता रहा है। अच्छा, चार मीनार की जो प्लास्टिंग है, जैसा पहली मंजिल पर मदरसा था और दूसरी मंजिल पर मस्जिद है, और सामने अज़ा का मीनार है, नीचे जो है फाउंटेन है, तो वो सबील है, पानी पिलाने का इंतज़ाम था। और इस तरह जो है एक ख़ास बात, चार मीनार की जब प्लास्टिंग हो रही थी उस ज़माने में छोटे छोटे फिगर्स बने हुए हैं, जैसे मोर है, गिलेरी है, तोता है, ये सब अंगूर के खोशों पर बैठे बताए गए हैं। और उसमें एक जो कबूतर जो अमन की निशानी है, और हैदराबाद में अमन की और पूरे शहर में अमन की निशानी, उसको जो है ख़ास तौर पर एक गुलदस्ते में जो है बिठाया गया है। 3 डायमेंशनल कबूतर जो है, फाख्ता कहिए या कबूतर कहिए, उसको जो है आप सेकंड फ्लोर पर मस्जिद के सामने जो है कबूतर को बिठाया गया है, और वो अमन जो है बरकरार है।